Hello everyone. Today we are going to learn the final and last portion of chapter number 7, and that is part 3, control and coordination, from chapter 7 of grade 10. So now move ahead. So in part 3 we have to learn coordination in plant and hormones. These are the main two things that you have to learn. First one is coordination in plant and second one is coordination in hormones secretion. In part 2 you already learned coordination in animals, in which you learn stimuli, coordination, nerves, neurons, transmission of messages. But in this part and the last part you have to learn how plants coordinate with each other and how the hormone secretions are there in plant and animal. So in first point you have to learn coordination in plants and the movement in plants, the how plant movement for growth, and last the point is hormone, that how hormones are which hormones are secreted in plant and animal, and what is endocrine gland. So first of all we'll talk about coordination in plant. Now in plant, control and coordination is done by chemical substance called plant hormone or phytohormones. So if you are talking, already I am telling you in part 2 video that plant control and coordination can be done by chemical substances, and that is known as plant hormones, or else you can say phytohormones. Now there are mainly 5 types of phytohormones or else plant hormones are there. You can say any of the thing, plant hormones and phytohormones. So majorly they are of 5 types, and that 5 types are auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. These are the major 5 hormones which is responsible for coordination in plant. You have to learn one by one of all, and you have to learn what is the function of all these 5. So first of all, auxins. That what is auxins and what was the work of this? So auxins help in cell division and cell elongation and growth. So if I say in a simple language that what is the work of auxins, so they'll work in cell division in the cells, in the sense from how one cell grow from one to another. जैसे एक सेल में से दूसरा सेल किस तरीके से बनेगा, सेल डिवीजन कब होगा, तो सेल डिवीजन की हेल्प में वर्क करेंगे ऑक्सिन्स. और सेल इलोंगेशन इन द मीन्स स्ट्रेचिंग, उसको ग्रो होने के लिए, उसको लंबा होने के लिए, उसकी साइज के इलोंगेशन के लिए द वर्क इज डन बाय ऑक्सिन्स. नाउ जिब्रेलिन्स हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. द ब्रांच एंड द स्टेम विच यू शो इन प्लांट्स, दैट इज ग्रो विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन हॉर्मोन्स. Then cytokinins also help in cell division like auxins, but in cell division they'll form fruit and seed, whereas auxin work as growth and cell elongation. Both are helping in cell division, but the functions is different. At a time of cell division, cytokinins forms fruit and seed, and auxins responsible for cell elongation and growth. Then abscisic acid inhibits growth and affects wilting of leaves. Inhibit the growth in the sense they inhibit the wrong growth or else a negative growth, like whitening of whitening of leaves and the whittling of leaves, and sometimes you can say the leaves are going yellow in color. So this growth inhibition can done by abscisic acid wherever the necessary, and where is needed, then abscisic acid inhibits the growth and give a whittling effect of leaves. And the last one, it is ethylene helps in flowering and ripening fruit. Now ethylene helps to flowering and ripening the fruits, मतलब फ्लावर्स है जो बर्ड्स में से फ्लावर बनते हैं, और जो फ्रूट्स है जो रिपन होते हैं, रॉ मटेरियल रॉ फ्रूट में से जो रिपन फ्रूट होते हैं वो रिपन करने का काम, और बर्ड्स में से फ्लावर बनाने का काम इथिलीन करता है. तो हियर आर द मेन 5 hormones and the work of them. Note down it may be asked in 1 mark question, or it will be maybe asked in MCQ of fill in the blanks, whatever. So now the next one is movement in plant. In this video you have to learn 2 portion in coordination in plant. First one is
First one is 5 main hormones which is secreted in plant, and second one is movement in plants. Movement in plants means how the part of plant will move, in which direction they'll move. It is known as movement in plants. So if I'm talking about movement in plants, there are mainly two types of movement are there: tropic movement and second one is nastic movement. So first one is tropic and second one is nastic movement. Tropic movement is furtherly divided in 4 portions. Here you can say the blue portion, that is a part of tropic movement. First one is phototropism, second one is geotropism, third one is chemotropism, and fourth one is hydrotropism. So here is a 4 part of tropic movement, and nastic movement have no part, it's alone only. So now we have to learn tropic movement, that what is a tropic movement and what are the types of tropic movement. So tropic movement in the sense a type of a directional movement towards the stimuli, and tropic movements depend on growth. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब प्लांट को जहां से भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, जहां से भी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, उस डायरेक्शन के अंदर प्लांट का ग्रोथ होगा, उस मूवमेंट को बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट. हियर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिक, सेकेंड इज जियोट्रॉपिक, थर्ड वन इज केमोट्रॉपिक, एंड फोर्थ वन इज hydrotropic. As I show you in a chart that these 4 are the type of tropic movement. Now you have to learn one by one. So the first one is phototropism. As a word suggests, photo and tropism. Photo means light and tropism means movement. So a movement towards light is known as phototropism. So the 4 way you have to learn by words only: phototropism, geotropism, chemotropism and hydrotropism. इन वर्ड्स को अलग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक उसका मतलब पता चल जाएगा. फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट. सो द मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज phototropism. So it is a movement of plant in response to light. As I told you, response to light is known as phototropism. Now this response is of a 2 type. Either is it a positive response or else it is a negative response. Now positive means if the plant move towards light then it is positive, and if the plant away from light then it is negative. समझ में आया? मतलब अगर जिस डायरेक्शन से प्लांट को लाइट मिल रही है, प्लांट उस साइड अगर झुकेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म, कि भाई जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड प्लांट ने बैंड किया, तो लाइट की साइड अगर बैंड होगा देन इट इज पॉजिटिव ट्रोपिज्म. बट नेगेटिव ट्रोपिज्म मतलब कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, दैट इज नेगेटिव ट्रोपिज्म. इट शोज दैट इफ इट इज अवे फ्रॉम लाइट. द एग्जाम्पल इज बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट. मतलब अगर आपका जो ट्री है उसकी शूट मतलब उनकी जो ब्रांचेस है वो लाइट की साइड डाउन हो रही है, लाइट की साइड बेंड हो रही है, देन इट इज पॉजिटिव. और अगर लाइट से दूर जा रही है देन इट इज नेगेटिव. हियर आई एक्सप्लेन यू विद द इमेज. हियर यू कैन से light is coming from right side. So this portion here you can say my arrow which is red in color, and you can show the tree which is green in color. This tree receives light from right side, so this portion will bend on right side. So that shows positive tropism क्योंकि ये light की side झुक रहा है. So this is positive. But at the same time you can say the roots of that plant which is go away from light, क्योंकि लाइट आपको राइट साइड से आ रही है और ये जो उनके रूट्स है वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो नेगेटिव साइड जा रहे हैं, लाइट्स की दूसरी साइड ऑपोजिट साइड जा रहे हैं. सो दिस इज अ नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म. गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी ट्रोपिज्म हो, अगर जहां से उसको सोर्स मिल रहा है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, और अगर उसकी दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव. देन नाउ वी विल मूव ऑन द सेकेंड वन. The second one is geotropism. Geo means earth and tropism means movement. So movement towards earth is known as geotropism, and earth have gravity, so movement towards the gravity is known as geotropism. Now at the same way
If it's towards the gravity then it is positive, and it is from away gravity then it is negative. मतलब अगर वो ग्रेविटी की साइड बैंड हो रहा है तो पॉजिटिव, और ग्रेविटी से दूर बैंड हो रहा है तो नेगेटिव. एंड द एग्जांपल आर डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स is positive and upward growth of shoot is negative. Here again we'll understand with the help of image. So here is a portion that from there the shoot is growing, and from this side the roots are growing. So you can say gravity always pulls object towards it, but here the shoot is growing upward. मतलब this is a soil portion, the straight line. Here is a soil portion, but the shoot is growing in a upward direction. मतलब कि ये ग्रेविटी की उल्टी दिशा में जा रहा है. ग्रेविटी हमेशा नीचे की साइड आती है, बट यहाँ पे ये शूट क्या हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस इज अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म. बट ये जो रूट्स है वो नीचे की साइड आ रहे हैं, मतलब ग्रेविटी भी नीचे की साइड और रूट्स भी नीचे की साइड. सो दिस वन इज अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म. गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट वन. Now chemotropism. Chemo means chemicals and tropical means movement. So if a plant respond to a chemical response or else chemical stimuli, it is known as chemotropism. For example, growth of pollen tube towards the ovule. You'll know about a flower pollination. What is the process of pollination and pollination in flowers? Here I can tell you with a image that here the ovule is there, in which eggs are fertilized and generate in flower. But at the upper side, in a stamen, the pollen grain is attached on the stamen, and from that pollen grains will start moving down, generate a pollen tube, and from that pollen tubes pollen will move and finally reach at the ovule, and in the ovule they will fertilize. So ovules have a chemical secretion. So these pollen grains go towards the chemical, so they'll move towards the chemical. So this one is known as chemotropism. So the next one is hydrotropism. Hydro means water and tropism means movement. So movement towards the water is known as hydrotropism. For example, growth of roots towards water. मतलब कि जो भी रूट्स है वो वाटर की साइड में, वाटर की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, दैट इज hydrotropism. Here you can say this one is a shoot, and here is a root here is the roots of that shoot or else a plant. So where they can get water, that roots can elongate from that water source and receives water. This one is the best example of hydrotropism. कि मतलब प्लांट कहीं पे भी हो, बट उनको जहां से वाटर का सोर्स मिलेगा वहां तक उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, लंबे होंगे, और वहां से वाटर सोर्स लेंगे. तो हियर यू कैन से यहाँ पे वाटर इस साइड है, तो इसके जितने भी रूट्स है वो इस साइड लंबे हुए हैं. सो दिस वन इज अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. पर यहाँ पे ये रूट्स लंबे नहीं हो रहे. वाटर जिस साइड है उस साइड से अगर रूट लंबे हो तो ये हो गया पॉजिटिव, और अगर उससे उल्टी साइड लंबे होते तो वो हो जाता नेगेटिव. बट हियर दिस आर अ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Now topic movement is completed. Now we'll move on nestic movement. Now as like tropic movement is depend on stimuli, but nestic movement don't depend on stimuli or they don't depend on growth. They are non directional movement. जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो डायरेक्शनल मूवमेंट थी कि जहां से उनको सोर्स मिलेगा उस साइड वो मूव होगी. बट नेस्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है कि जो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है, वो कोई भी डायरेक्शन में ग्रो हो सकती है और कोई भी डायरेक्शन में मूव हो सकती है. which are neither towards away from stimuli and it does not depend on growth. As I told you कि उनको stimuli के ऊपर उनको response से कोई लेना देना नहीं है और उनका growth से भी कोई मतलब नहीं है. For example, the best example is touch me not plant. You all know that how touch me not plant work. If you touch that plant, the plant shrinks and after some time they will automatically as it is. So here the example, this is a touch me not plant. If you touch it, then the reaction is like this. This plant are shrink because their leaves are release
amount of water, and depending the amount of water released by the plant, it will shrink like this. So if you touch me not plant, the water will release from these leaves and the leaves are shrink. आज तक आपने एग्जाम्पल तो पढ़ा होगा कि हाँ भाई टच मी नॉट प्लांट, बट मेन रीजन ये है इनका श्रिंक हो जाने का, कि जैसे ही आप उस प्लांट को टच करते हो उनके अंदर जो वाटर का कंटेन होता है वो क्या होता है, इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि ये टच मी नॉट प्लांट बिल्कुल ही श्रिंक हो जाते हैं. Then so here our plant movement is complete. Now we will move. So our second point is hormone in plant, and after that we will learn hormone in animal. So already I told you which are the hormones are in plant and what is the function of that, but again we will repeat. Here are the three hormones which are there in plant, and here is the function. The first one is auxins, which help to grow of plant tissue at a time of cell division. Cytokinins promotes cell division, means they'll give a signaling at when the time of cell division come. After receiving the signal for cytokinin, the cell division start. Promote means start करवाना किसी चीज को, and delay aging of cell, मतलब सेल को ज्यादा एज तक उनकी एजिंग जो होती है ना, कि वो जल्दी से एजेड हो जाते हैं, उनकी एजिंग को क्या करता है, डिले करता है. देन एब्सिसिक एसिड इनहिबिट ग्रोथ एंड कोज विटलिंग ऑफ लीव्स. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जो नेगेटिव ग्रोथ होगा, और विटलिंग ऑफ लीव्स की विटलिंग करता है. एंड प्रमोट्स डोर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, की जितने भी बर्ड्स एंड जितने भी सीड्स है उनके लिए डोर्मेंसी प्रोड्यूस करता है. सो you will learn what is dormancy of birds and seeds, but before this you have to learn what is a word dormancy means. Here एब्सिसिक एसिड का मेन वर्क क्या था कि इनहिबिट ग्रोथ, की ग्रोथ को इनहिबिट करना. तो कोई भी हार्मोन ऐसे ही तो ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करेगा, बट कभी कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि सारी फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी हम ग्रोथ को क्या कर देते, इनहिबिट कर देते, क्योंकि एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो एब्सिसिक एसिड वही काम करता है, प्रमोट्स डोर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, की जितने भी बर्ड्स है, जितने भी सीड है, कि जो जर्मिनेट होने की पोजीशन पे है, कि अभी वो जर्मिनेट होने ही वाले फ्लावर के अंदर या तो फ्रूट के अंदर. बर्ड्स में से फ्लावर बनेंगे, सीड्स में से फ्रूट बनेंगे. तो जैसे वो जर्मिनेट होने वाले हैं तो उनका जर्मिनेशन क्या करता है, स्टॉप करके रखता है. प्रमोट डोर्मिनेंसी मतलब कि उसको एक स्टेट में एट ए सेम पोजीशन ला के रखता है, क्योंकि अभी प्लांट को इतने ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सारी फेवरेबल कंडीशन होने के बाद भी उनको क्या करता है, डोर्मेंस रखता है, मतलब इनएक्टिव रखता है. जर्मिनेशन की कैपेसिटी है, सारी रिक्वायरमेंट्स भी है, फिर भी बर्ड्स और सीड को डोर्मेंस कंडीशन में एज इट इज रखने का काम एब्सिसिक एसिड करते हैं. सो हियर द प्लांट हार्मोन इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल मूव ऑन. सो here you have to learn hormones in animal. Before learning hormones in animal, you have to learn which type of glands are present in animal. So endocrine system is responsible for the secretion of hormones in animal, and this endocrine system have a two type of gland. First one is exocrine gland and second one is endocrine gland. Now what is the word exocrine and endocrine means? Exocrine glands are glands that discharge secretion by means of duct and which is open on the epithelial surface. Now as a simple word, exo means outside. So a type of gland which secrete or else which discharge secretion outside of the body, that means on a epithelial surface or else on your skin, on else the outer surface, they are known as exocrine gland. And at the same way, a type of gland which are the ductless gland and which do not and which secrete hormones into the blood stream, that means endocrine gland. Endo means inside. So a type of gland which release hormones inside the human body or else I can say inside the blood stream, कि आपके ब्लड के अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होता है, that is by endocrine glands. Done. So endocrine system के दो पार्ट, exocrine and endocrine. एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब कि जो एपिथेलियल सरफेस में आपकी बॉडी के बाहर सिक्रीशन करती है हार्मोन का,
और एंडोक्राइन मतलब कि जो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीशन करती है. We have to learn what is endocrine gland. That means a type of gland which secrete hormones inside the blood. So the endocrine gland help in control and coordination, as you know. Now the endocrine gland produce chemical substance which help to control and coordinate various activity in the body. So this endocrine gland secretes various type of chemical substance which is known as hormones to control and coordinate your body activity. And the endocrine gland in our bodies are, there are so many types of endocrine gland is present. For example, pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, adrenaline, pancreas, testes and ovary. Here are the 10 endocrine glands in your body which you have to learn, and this gland secretes a various hormones, and that hormone work is very important for you. So here we learn in a table form. First one is endocrine gland, second is its location, third one is hormones produced by it, and the last one is function of that hormone. And in a white line you have to learn what is a deficiency. अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो क्या होगा, और कम अमाउंट में ले रहे हो तब क्या होगा. So we'll starting with first gland, and the name of first gland is pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, बिकॉज ये एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ से सारे ग्लैंड्स को सिग्नलिंग मिलती है कि ये मास्टर वर्किंग है. सो अगर आपको कहीं पे मास्टर ग्लैंड लिखा हुआ दिखे, दैट मीन्स इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली. द लोकेशन इज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, की ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में. आपको पार्ट 1 में मैंने इसकी लोकेशन के साथ दिखाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है. एग्जैक्ट हाइपोथैलेमस के नीचे की साइड पे. और हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, फोर ब्रेन के नीचे वाले पोर्शन में. डन. सो हियर द हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. एंड एज अ नेम सजेस्ट, ग्रोथ हार्मोन का वर्क क्या होगा, स्टिमुलेट ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करना. आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सिर्फ ये एक ही हार्मोन दिया गया है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड टोटल 3 हार्मोन सिक्रीट करती है. सो ग्रोथ हार्मोन के साथ ये 2 हार्मोन भी एक बार याद रख लेना. आई होप, सॉरी, मे बी इट कैन बी चांस दैट इट इज. सो फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज नोन एज TSH. फुल फॉर्म इन सब के याद रखना. GH मीन्स ग्रोथ हार्मोन, TSH मीन्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. एंड एज अ नेम सजेस्ट, वर्क क्या होगा, स्टिमुलेट द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन था तो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता था, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को स्टिमुलेट करेगा. एंड द नेक्स्ट वन इज FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. की जितने भी फॉलिकल्स है ओव्यूलेशन के टाइम पे, आपकी बॉडी के अंदर जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस के टाइम पे जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको सिर्फ ये एक ही याद रखना है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये एक ही दिया है, फिर भी ये 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिए. नाउ व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ दिस? इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, दिस हार्मोन्स इन द सेंस ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, ये 2 तो एक्स्ट्रा है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इफ योर बॉडी हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन अ चाइल्डहुड, इट लीड्स टू ड्राफिज्म. ड्राफिज्म मतलब सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं तो बहुत लोगों की हाइट क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है, कि उनकी एज तो बहुत ज्यादा होती है बट फिर भी वो ऐसे छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटे बच्चों जैसी हाइट रहती है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ अ ग्रोथ हार्मोन. की अगर उनको चाइल्डहुड के टाइम पे ग्रोथ हार्मोन उनको अगर ड्राफिज्म मीन्स उनको अगर छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन का इतना डोज नहीं मिला, उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिला, तो क्या हो जाता है, उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती और वो लोग छोटे के छोटे रह जाते हैं. सो दैट लीड्स टू ड्राफिज्म. बट कब, जब ग्रोथ हार्मोन्स कम मिले, तो वो क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं. एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन्स कोज टोल ग्रोथ. जिसको कम मिला
वो बेचारा छोटा रह जाएगा, और जिसके अंदर इस हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। सो अब आपको इतना पता चलना चाहिए कि जो बंदे छोटे रह जाते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर कम होगा, और जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे हैं जो लोग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि उनमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है। द सेकेंड वन इज एड्रेनल ग्लैंड। लोकेशन कहाँ पे है, किडनी के ऊपर की साइड में। हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है, एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन हार्मोन का वर्क क्या है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी सिचुएशन एंड ऑल्सो नोन एज फाइट हार्मोन, कि आपकी बॉडी को जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कि जो सडन वर्क होते हैं, सडन वर्क मतलब जो इमरजेंसी के काम होते हैं आपकी बॉडी को, कि जो फटाफट होते हैं, तो ये सारे इमरजेंसी वर्क कौन करता है, एड्रेनालिन ग्लैंड। इसीलिए इस ग्लैंड को फाइट ग्लैंड या तो फिर फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एज आई टोल्ड यू द फंक्शन इज इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी आपकी बॉडी को इमरजेंसी की जरूरत है तो इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही सिक्रीट होता है। वैसे ये सारे एंडोक्राइन है, सारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही सिक्रीट होंगे, बट इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में जाके सीधा अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सकता है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट एरो की से समझाया है। जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब आपकी, तो उस टाइम पे एड्रेनालिन वर्क करता है कि भाई हार्ट बीट फास्ट हो गई, तब क्या होगा कि आपकी हार्ट बीट फास्ट होते ही आपके मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपकी बॉडी, जब आपके मसल्स ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड है, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, स्केलेटन की साइड पे डाइवर्ट हो जाएगा, कि बॉडी के दूसरे पार्ट को कम ब्लड मिलेगा और आपके स्केलेटन को, आपके जो मसल वाला पोर्शन है उनको क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड मिलेगा, और ज़्यादा ब्लड मिलेगा तो वो सिचुएशन से डील कर पाएंगे। इस सिचुएशन को आप रनिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो, कि आप जब भी भागते हो ना तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, और आप ऐसे शॉर्ट ब्रीथ करते हो, ऐसे फटाफट मुंह से भी सांस लेते हो और आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी आप भागते हो आपके मसल्स के अंदर जो एक्टिन और मायोसिन है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलता है, कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है वो अलग अलग जगह से मसल्स की साइड डाइवर्ट हो जाएगा और आपकी सिचुएशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। Here are the next one, thyroid gland. The location is at a neck and the hormone produces thyroxine and the function are control the metabolism of carbohydrate, fat and protein and helps in proper growth। कि भाई थायराइड ग्लैंड है जो आपके नेक के साइड लोकेटेड है। हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन। और क्या काम करता है, आप फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो, फैट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, उनका मेटाबोलाइज करने का काम, मतलब उनको डाइजेस्ट करने का काम और उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करवाने में हेल्प कौन करता है, थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प करता है। अब अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो आपको गोइटर होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गोइटर हुआ है, तो आपका जो गला है वो क्या हो जाता है, पूरा वहां पे स्वॉलन आ जाती है, पूरा सूज जाता है, तो दैट वन इज अ साइन ऑफ गोइटर, कि जब आपको आयोडीन कम मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सफिशिएंट अमाउंट वाला आयोडीन सॉल्ट यूज कर लिया करो, कि आपको थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से गोइटर ना हो पाए। द नेक्स्ट वन इज पैनक्रियाज, located near stomach and hormone secreted is insulin and this one is a normal hormone, you all know about this. It control blood sugar level and as you know अगर इंसुलिन कम हुआ तो भी डायबिटीज हो जाएगा, इंसुलिन ज़्यादा हुआ तो भी डायबिटीज हो जाएगा। सो इंक्रीज, इंसुलिन ज़्यादा हुआ मतलब अगर इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो आपकी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा है तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो भी डायबिटीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये पता होना चाहिए डायबिटीज़ टोटल 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक में होता है शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से और एक में होता है शुगर लेवल कम होने की वजह से। सो इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल कॉज डायबिटीज़, कि अगर इंसुलिन का अमाउंट ब्लड के अंदर बढ़ गया तो डायबिटीज़ हो जाता है ना। डायबिटिक पेशेंट हैज़ टू टेक इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल।
अब क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है तो फिर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता, क्योंकि ज़्यादा शुगर लेवल हो गया। आपको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन तो आपकी बॉडी के अंदर बनना बंद हो गया है, सो आपको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। डन। नाउ testes and ovaries, these are the sex hormones. Testes is located in scrotum and hormone is produced is testosterone. Now the function is sperm production and developed secondary sexual characteristic during puberty. कि ये दोनों जो hormones है टेस्टोस्टेरोन एंड ऑस्ट्रोजन, ये दोनों सेक्स हार्मोन है और ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स है। कि अब क्या होगा कि इनके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे एट अ टाइम ऑफ पबर्टी। ना एज आई टोल्ड यू, टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोड्यूस करता है और आपकी बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जनरेट करता है। ये क्या है मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ, बट पहले ओवरी समझा दूँ। ओवरी इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज लोकेटेड नियर यूटेरस विच secrete hormone estrogen and it is responsible for egg production, mostly in female body. This one is in ovary in female body and test is in male body. Then so testes and testosterone is for male and ovary and estrogen is for female body. In male body sperm production function is of testosterone and in female body egg production is there due to estrogen and again develop of secondary sexual characteristic during the puberty. Now what is secondary sexual character during puberty? कि क्या हो जाए कि जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं तो टीन एज में आते ही उनकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर्स का ग्रो होना, उनके वॉइस के अंदर वोकल कॉर्ड के अंदर चेंज आ जाना, फेशियल चेंज आना, बॉडी के अंदर चेंज आ जाते हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये जो सारे चेंजेस है दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कि ये सारे इन दोनों ग्लैंड्स और इन दोनों हार्मोन्स की वजह से होते हैं। कि अगर बॉयज हो तो टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन। नाउ द इमेज दैट वन इज हाइपोथैलेमस एट अ ब्रेन पोर्शन, देन पिट्यूटरी ग्लैंड at the down of hypothalamus, then thyroid gland at a neck, then thymus, then pancreas, then adrenaline and testes. And if I'm talking about female body, then same hypothalamus, pituitary, thyroid, thymus, pancreas and adrenaline at a same position, but testes are located in scrotum and ovaries, testes are the gland which is located in scrotum and produce testosterone, and ovary located near uterus and generate estrogen. So ये सारे लेबलिंग याद रख लेना। मे बी आपको डायग्राम देके सिर्फ लेबल्स पूछ सकते कि ये ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है, नाम बताओ। सो ये डायग्राम याद। Here we are complete our chapter 7 control and coordination. Total chapter are in 3 portion, part 1, part 2 and part 3. तीनों के तीनों पार्ट एक बार रिफर कर लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आपकी बुक का एक भी पॉइंट नहीं छूटा है, फिर भी रिफर कर लेना। कहीं पे भी कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है देन इन्फॉर्म मी, मैं बाद में क्लियर करवा दूंगी।